کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس وقت یسوع کوہ زیتون کو گیا اور صبح سویرے پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ تب فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے اس سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ موسیٰ نے تو شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسیوں کو سنسار کرے، پس تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائے، مگر یسوع چپ کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا، اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا۔ اور وہ یہ سن کر بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت بیچ میں کھڑی رہی۔ تب یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، بی بی، وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ اور یسوع نے کہا، میں نے تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہم سب کے نام معاف کیے جائیں۔ آج میں بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ 175 بچوں کو بشپ صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو آج استحکام کا ساکرمنٹ حاصل کریں گے، تاکہ وہ ان کو روح القدس کی مہر سے بامہر کریں گے، تاکہ آنے والی زندگی میں وہ روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی میں گزاریں۔ تو بشپ جی، میں آپ سے آپ کے سامنے ان بچوں کو پیش کرتا ہوں جو بالکل تیار ہے۔ فادر جی، کیا آپ تصدیق دیتے ہیں کہ ان کی تیاری اچھی ہوئی ہے؟ کیونکہ میں نے ٹیسٹ لینا ہے۔ جی بشپ جی، مناسب کیا کسی نے کچھ پر فتویٰ نہیں دیا؟ اور اس وقت نے کہا، کسی نے نہیں۔ میں بھی کچھ پہ فتویٰ نہیں لگاتا ہوں، چلی جا اور گناہ نہ کر۔ اسی خدا میں میرے عزیزوں، اور خاص آج اس کام کے فرزندوں جو اس کام حاصل کریں گے، ایک نوجوان جو اکاؤنٹس میں بڑا ماہر تھا، اس کو ایک بڑی اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی کہ وہ پورے کمپنی کا سیلری اکاؤنٹس وغیرہ وہ سنبھالے، اور اس کا سلسلہ یہ تھا کہ سارا بینک اکاؤنٹ بھی اسی کے تھرو جاتا تھا۔ جب اس کو یہ نئی نوکری ملی تو کمپنی کے اندر وہ دیکھنے لگا کہ کچھ لوگ چوری کر رہے تھے اور پیسے اور چیزیں کمپنی سے غائب کر رہے تھے۔ اور ایک دن کیا ہوا، وہ بھی آزمائش میں گر پڑا، اور کیونکہ بینک اکاؤنٹ سارا وہ سنبھالتا تھا، اس نے آن لائن
कंपनी के बैंक के पैसे उसने अपना पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस सोच में किसको पता नहीं चलेगा क्योंकि बैंक अकाउंट मैं संभालता हूँ, लेकिन कंपनी के अंदर चेक और बैलेंस था, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि काफी बड़े पैसे कहीं और डरा हुआ परेशान, उसको समझ आ गई कि मैंने बड़ी गलती की, क्यों मैंने किया, पश्चिमान तो हूँ लेकिन अभी कुछ सजा मिलेगी। अगले दिन वो बॉस के दफ्तर में गया। बॉस ने उससे पूछा, क्या आपने चोरी की है? उसने कहा, सर नीचे था, शर्म के मारे। और उसने कहा, सर हाँ मैंने चोरी की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, सर हो सके तो मुझे माफ करना, मैं सारे पैसे वापस दूंगा। और बॉस ने उनकी तरफ देखकर कहा, इस कमरे में सिर्फ एक नहीं है जिसने गलती की है, इस कमरे में दो हैं जिन्होंने गलती की है। वो बंदा हैरान। और फिर बॉस कहने लगा, बहुत साल पहले, 30 साल पहले तुम्हारी तरह मैंने भी किसी तरह की गलती की, मैंने भी बैंक में मैंने अपनी कंपनी के पैसे चोरी किए, लेकिन उस वक्त मेरे पास एक बहुत अच्छा बॉस था और उसने कहा मैं तुम्हें एक मौका दूंगा और अब माफ करता हूं और जाओ और काम करो। और बॉस ने कहा, जिस तरह मुझे एक मौका दिया गया, मैं भी अब तुम्हें भी एक मौका देता हूं, पैसे वापस बैंक में डालो और जाके अपना काम करो। मेरे अजीजों, आजकल की दुनिया में एक और मौका बहुत कम लोग देते हैं। हम क्या करते हैं, बदला। किसी ने हमारे साथ कोई धोखा किया, चोरी की, हम कहते नहीं इसको जेल में बंद कर दो, हम इससे बदला निकालें। लेकिन यीशु का तरीका का क्या है? मौका पर मौका खुदा हमें देता है। आज अंजील मुकद्दस में इसी तरह का एक वाकया है। एक औरत जिना में पकड़ी गई और लोग यीशु को पकड़ना चाहते थे, तो उसने उस गुनाहगार औरत को यीशु के सामने लाया और उन्होंने कहा कि देखो, शरीयत हमें बताती है कि ये औरत जो जिना करते हुए हमने पकड़ी है, इसको पत्थरों से मारकर उसको खत्म करो। यीशु हमें बताओ कि हम क्या करें। यीशु जानता था कि वो उसको पकड़ना चाहते थे, क्योंकि यीशु माफी की बात करता था। अगर यीशु कहता है इसको माफ करो, तो वो कहते कि भाई शरीयत में लिखा कि उसको संसार करो, इसका मतलब आप खुदा की शरीयत पर काम नहीं करते। और अगर शरीयत भी यीशु कहता है उसको संसार पत्थरों से मारो, तो फिर यीशु को प्यार, मोहब्बत, रहम, माफी की बातें करता है, तो कहाँ है वो बात? और यीशु ने क्या किया? यीशु उसकी मुंह की बातों का फिक्र नहीं करता था, जमीन पे कुछ लिख रहा था। लोगों ने पूछा, हमें बताओ तो सही, क्या करो उस औरत के साथ? और जब उन्होंने मजबूर किया तो यीशु ने उनको क्या कहा? जिसने पहले गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारो। जिसने पहले गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारो। इस बात में बड़ी गहराई है, क्योंकि लिखा है कलाम में, थोड़ी देर बाद सब चुपचाप चले गए। सब बुजुर्ग से लेके छोटों तक सब चुपचाप चले गए, क्योंकि उन्होंने अपना गुनाहगार होना तस्लीम किया। उन्होंने पहचान लिया कि हम गुनाहगार हैं। और फिर यीशु उस औरत से क्या कहता है?
کہ کوئی کسی نے تو آپ پہ فتویٰ لگایا، پروفیٹ نے کہا نہیں، سارے چلے گئے، اور یسوع نے کہا میں بھی تجھ پہ فتویٰ نہیں لگاتا، میں بھی تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، جا اور گناہ نہ کر۔ ان روزوں کے دنوں میں ہمیں بھی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم فتویٰ نہ دیں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا۔ فتویٰ لگانے سے سب سے بڑا گناہ آج انجیل مقدس میں ہے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگا، کسی کو جج نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جج نہیں کرنا، فتویٰ نہیں لگا۔ ایک بشپ صاحب، اس نے اپنے پیرش پریسٹ کو بلایا کہ میں اب استقام کے لیے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا بار بار آپ کے چرچ میں موبائل بجتے ہیں، تو جب میں استقام کے لیے آؤں گا آپ نے لوگوں کو کہنا آپ کے موبائل بجنے ہی چاہیے، کیونکہ بار بار میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ وہ پیرش پریسٹ بلا گیا کہ یار بشپ صاحب اگلے ہفتے استقام کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر فون بج گئی کسی کا تو بشپ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس نے اتوار کے دن ایک ہفتے پہلے سب اتوار کی عبادت میں بولا کہ دیکھو بشپ صاحب اگلے ہفتے آ رہے ہیں، موبائل کسی کا بچنا نہیں چاہیے، ورنہ بشپ غصے میں آئے۔ سب نے پرومس کیا فادر جی آپ فکر نہیں کریں، ہم سب سائلنٹ موڈ بند کر دیں۔ فادر جی خوش ہوئے، استقام کا دن آ گیا، بشپ صاحب بڑے خوش تھے، عبادت وغیرہ سب ہو رہا تھا، اور جب تبدل کا وقت تھا فون بجنا شروع، ایک فون بجنا شروع پورے چرچ میں، اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کس نے غلطی کی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ فون کی آواز آ رہی تھی۔ آخرکار بشپ نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا، اپنا فون باہر نکالا اور آف کر دیا، اور پیرش پریسٹ مسکرا رہا تھا بشپ کی طرف، ہاں ہمیں کہتا ہے دیکھو خود اس نے نہیں۔ اس کہانی کا مطلب کیا ہے؟ اس کہانی کا مطلب کیا ہے کہ جلدی فتویٰ نہیں دو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ میری امی سکھاتی تھی نا، ہم لوگ 5 بھائی بہن تھے، لڑائی نہیں ہوتی تھی، تو ہم آگے ہمیں کہتے تھے تمہارا ہاتھ دیکھو، ایک ادھر ہے لیکن تین تو تمہارے طرف جا رہا ہے، لگتا ہے تم غلطی پہ۔ ہم سب دفعہ اپنے دوسرے پہ لگاتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ کلام کو چھوڑ کے اپنے استقام کی طرف آتے ہیں۔ استقام کے سیکرمنٹ میں سب سے اہم تلاوت کون سی ہے؟ رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب، وہاں پہ کہانی کون سی ہے؟ رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب۔ ادھر کیا تھا؟ رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب۔ عید پینٹیکوست کا واقعہ تھا۔ عید پینٹیکوست کے واقعے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ شاگرد مقدسہ ماں کہاں پر تھے؟ بند کمرے میں تھے، اور کھانا کھا رہے تھے، حلوہ پوری کھا رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ سب سے اہم بات، پاک روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ جب روح القدس ان پر نازل ہوا 3 تبدیلیاں ہوئی، اور آج میں آپ کے سامنے یہ 3 تبدیلیاں اس وجہ سے پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ تینوں تبدیلیاں آپ میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ آج روح القدس حاصل کریں۔ کون کون سی تبدیلی؟ سب سے پہلی تبدیلی اندرونی تھی۔ ان کے دل میں شروع میں ڈر اور خوف تھا۔ وہ یہودیوں سے ڈر رہے تھے، وہ رومی سپاہیوں سے ڈر رہے تھے۔ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو سب سے پہلی تبدیلی دل کے اندر تھا کہ ان کا ڈر اور خوف بہادری میں بدل گیا۔ کیا آپ ڈرتے ہیں؟
नहीं दे रहे, डरते हैं? नहीं। एक छोटा सा कुछ होगा, एक चुटकी में छोड़ दूँ यहाँ पे, फिर देखो डर खौफ किसको आता है। लेकिन ये इस डर और खौफ के बारे में नहीं, मैं आपको बताऊंगा एक डर और खौफ जो मैंने अपनी जिंदगी में, मैं बिशप बना मुल्तान का बिशप एपोस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर 2013 में। तो नुन्सियो ने मुझे वहाँ पे सब कुछ दिखा के वो चले गए, और जब मैंने अकाउंट्स देखे तो वहाँ पे पैसा बहुत कम था। अगले महीने की सैलरी देनी थी और मैं परेशान होने लगा कि डायसिस में कुछ पैसे नहीं है, मैं सैलरी किस तरह दूंगा, और सैलरी भी लाखों में जाती। मैं परेशान, मुझे नींद नहीं आती थी, रात को 1 बजे 2 बजे उठ के परेशान हो जाता था कि मैं क्या करूँगा। एक दिन इसी तरह में मैं रात उठ के मैं परेशान था कि अचानक दुआ में खुदा ने मुझसे बात की। खुदा ने कहा, कहने क्यों डरता है? ये काम बिशप का काम, ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम। करने की जरूरत नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। उस रात बड़ा सुकून से मैं जब ये दुआ मैंने की, मैं सो गया। अगले दिन मैं गया नीचे दफ्तर में, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन खोला और ईमेल्स आए थे जर्मनी से, जहाँ पे हमने पैसे की दरख्वास्त, प्रोजेक्ट के लिए दरख्वास्त की, और वहाँ पर ईमेल था कि हमने आपके सारे प्रोजेक्ट्स कबूल किए हैं और जल्दी हम आपकी तरफ पैसे भेजें। उस वक्त दिल को बड़ा सुकून आया और फिर मुझे समझ आई, बहनी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुदा पर भरोसा। हम अक्सर दफा बहुत डरते हैं, इम्तिहान से पहले आप भी चाहते हैं कि कितना डर खौफ होता है कि क्या मैं करूँगा, पास होऊंगा कि नहीं। पर अगर यीशु पे भरोसा रखे होते हैं कि यीशु सब कुछ करेगा, तो आप देखेंगे कि आप बहुत कामयाब होंगे। आज जब आपको पाक रूह यीशु की रूह आपको दी जाएगी, तो आपको यही बताया जाता है डरने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बहादुरी की रूह मिलती। दूसरा कि वो दूसरी तब्दीली, ज़रूरी तब्दीली, जब रूह कुदुस पर नाज़िल हुआ, जब उनको बहादुरी की रूह मिली, तो उन्होंने दरवाजे खिड़कियां खोल के यीशु की गवाही देने लगे। अब याद रखो कि आपने यीशु की गवाही देनी, यीशु के गवाह। क्या इसका क्या मतलब है कि आप बाइबल पकड़ के जमुनाबाद की गलियों में लेक्चर देना शुरू करेंगे? बहुत ज्यादा है जमुनाबाद में, लेकिन यीशु हमें एक और तरह की गवाही देने के लिए बताते हैं, जो कि मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी क्या कहते हैं कि हर अंजील की मुनादी करो, हर वक्त अंजील की मुनादी करो, और जब जरूरत पड़े अल्फाज इस्तेमाल करना। दोबारा सुनो, हर वक्त अंजील की मुनादी करो और सिर्फ जब जरूरत पड़े अल्फाज इस्तेमाल करना। यानी कि अंजील की मुनादी किस तरह हमें करना है? इससे, ज़बान से या आंखों से, कामों से। मदर टेरेसा ऑफ कैलकटा जानते हैं, उनके बारे में सुना? मदर टेरेसा ऑफ कैलकटा, सिस्टर डॉक्टर रूथ ऑफ कराची। उन्होंने कोई बाइबल लेके कलाम, जिस तरह मैं कलाम करता हूँ, बहुत कम किए, लेकिन उनके कामों से उन्होंने प्रचार किया। एक और मिसाल यहाँ आकाश बशीर जो आपकी गिरजा में, क्या मेरी तरह उसने कोई लेक्चर किया, अंजील की मुनादी की?
लेकिन सबसे बड़ी गवाही किस पर उसने दी? अपनी जान दे दी। तो हमें भी बताया जाता है कि हमें यीशु की गवाही देनी है, लेकिन किस पे हमें जोर? बातों पे नहीं, अपने कामों से यीशु की गवाही देनी है। और तीसरी बात, मुख्तलिफ ज़बान बोलने लगे, मुख्तलिफ ज़बान बोलने लगे। तो इस इबादत के बाद आप पता नहीं कौन से ज़बान बोलेंगे, कितनी ज़बानें आपको आती। इसके बाद आप गुरु जब आप में आएंगे तो आप मुख्तलिफ ज़बानें बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें बाइबल मुकद्दस तरतीब की किताब में जाना है। उस वक्त लोग बड़े शैतान थे, उन्होंने कहा हम गुनाह भी करना चाहते हैं और जन्नत में भी जाना चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे कि हम बहुत बड़ा बुर्ज बनाएंगे, टावर जो जमीन से लेकर आसमान तक जाएंगे, तो हम गुनाह भी करेंगे और टावर के जरिए से जन्नत में भी जाएंगे। यीशु ने कहा, खुदा ने कहा नहीं। तो खुदा ने उनके प्रोग्राम को किस तरह खराब किया? उनको मुख्तलिफ ज़बानें दे दी। वो एक कहता था पत्थर ले आओ, वो सीमेंट लेके आ रहा था, दूसरे से कहता था रेत ले आओ, वो ईंट लेके आ रहे थे। और इस वजह से सारा वो उधर तबाह हो। तरतीब की किताब में मुख्तलिफ ज़बानों में तकसीम हो गई, लेकिन यहाँ इस रसूलों के ईमान में जब रूह कुद्दुस नाज़िल हुआ तो मुख्तलिफ ज़बानों ने उनको एक जमात बना दी। और ये है पैगाम कि आज इस्तेकाम हासिल करके आप यूहन्नाबाद की कलीसिया की जमात के फर्जंद बनते हैं। और आपने अब फादर जी को कहना है कि मैं अब पैरिश का नुमाइंदा हूँ। फादर जी मुझे बताएं कि मैं कौन से ग्रुप में जाके चर्च की खिदमत करूँ। आपके चर्च में जैसे मैं दाखिल हुआ तो इतने अच्छे इंतजाम था मुझे वेलकम करने के लिए। ऑल्टर सर्विस बिल्कुल तैयार थे कि हम इबादत करें। चर्च बिल्कुल साफ है, साफ सुथरा, इबादत डेकोरेशन वगैरह अच्छी है। ये क्या हमने इनको पैसे दिए करने के लिए? सब उन्होंने कहा कि हम खुदा के चर्च के लिए काम करें। और आज से आपकी जिम्मेदारी, बहुत से आप में से ऐसे हैं जो इस्तेकाम हासिल करके गायब होंगे और फिर शादी के दिन पे आके आप फादर जी से सलाम जी मैं वापस आ गया हूँ शादी के सैक्रेमेंट के लिए। फादर जी पूछेंगे किधर गायब? बस मैं गायब हो गया। गायब नहीं होना, आपने फादर जी को तब करना है कि फादर जी मैं चर्च के खिदमत करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, मुझे किसी ग्रुप में डालो। तलाक के पढ़ने वाले, लेक्चर्स ग्रुप, अशर्स ग्रुप, इतने सारे चर्च के अंदर ग्रुप से आपने कहना कि मैं किसी ग्रुप में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी चर्च की खिदमत करना चाहता हूँ। कराची में हमारे फादर जो भी लोग होते थे बहुत सख्त था, अब खुदा के पास वो इस्तेकाम को बच्चों को कहते मैं तुम्हें आज सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। आज खुदा आपको पाखरू दे दिया जाता है जो आपके दिल से करवट और दूर करेगा। दूसरी बात आपको गवाही देनी है, यीशु की गवाही। और यीशु की गवाही किस तरह? अपनी जिंदगी से। और तीसरी बात कि आप इस जमात के हिस्सा बनेंगे और आप अपना काम खुदा की कलीसिया के लिए देंगे। वो वक्त खत्म हो गया जब आप हासिल करते हैं। अब आपने कहना मैं क्या वापस दे सकता हूँ। और यकीनन इस्तेकाम जब आप लोगों की बदबूई आप में आएगी तो आप इसी तरह मजबूत ईमान के साथ यीशु की गवाही देते रहेंगे। मसीह खुदा की वसीले से।